Hello, good afternoon, everyone. Welcome back once again. In last class, we have discussed about the flow of control statements. Now, and with that flow of control statements, we have completed the chapter 1 of revision tour 1. Now, today, we will begin with our chapter 2, revision tour 2. So, in this session, we will discuss about the Python strings. Python strings are the that are that are surrounded by either single quota, double quotes, or triple quotes marks. For example, this one, hello. It is surrounded by single quotation sign, double quotes, and triple quotes. These three O are the methods to represent a string. In Python, there is no character data type. So every character is stored as a string. Even if you want to write a space, that should also represent a string. It will never count as a character because Python does not support any character data type, irrespective with the other programming languages. So if you want to print an string, just write print statement and use single quotes or double quote sign in the print statement and get the result. Now, how to get a string assigned to a variable? The same method of assigning, let's explain with the programmatically. Just open Python in this way. Sorry. So this is the Python screen. Here, if you want to assign a string hello, just write in this way and print in the using print statement. Hello will get print. Now if we will print a directly, then a will be hello. The result of this will get print like this by inverted commas on both sides. It is representing that a is a variable having value hello, and that is surrounded by a single inverted comma. It means it is a string value. Suppose if you will write b as a 12 and if you will print b, then without inverted commas it will get printed. So it means it is not a string value. So next one is string can be assigned in single line and multi-line string. If you want to assign a string in single line, just write in this way a equal to double quotes on hello. If you want to assign string in multiple lines, then use triple quotes and separate the string in multiple lines and end with the triple quotes. This will print the multi-line string. Let's do it programmatically. Suppose a equal to triple quotes hello world. Hello. Okay, in this way we have written. Now print a, it is printing as hello, means was hello, it is separated by comma and backspace n, representing that whatever is written after this was in provided input in the new line. Again बैकस्पेस एन मीन्स जितने भी आपने प्रिंट किए हैं हेलो वर्ल्ड और हेलो बड़े वाला हेलो, ये सारे आपने न्यू लाइन के अंदर एंट्री करवाई थी, इसलिए आपको बैकस्पेस एन इज एक्चुअली ए स्ट्रिंग ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू इंसर्ट द स्ट्रिंग इन न्यू लाइन. Okay, then strings are array. Actually arrays are the method of arranging items in a sequence of continuous memory locations. So here the strings are also occupying a sequential memory location in the computer and are stored in one by one. One character or is need to store in a single bit of space. Sorry, single byte of space. Now Python does not, as I already have mentioned, that Python does not have any character data type. While in other languages there is a character data type, but a single character is simply a string with a length of 1. Now let's let's discuss with this diagram. Suppose this is the memory block. Here having name is a variable name containing a value Python, Python.
Now, what is the indexing? What do you mean by the indexing in the string? Indexing means it is a place value that will access any character from the string. Now there are basically two type of indexing. One is forwarding index and second is backward index. In forward index, if you want to access the first element, you should have to use index 0 like this. If you want to access second element, index is 1. So it means how many number of characters are in the string, the last character index can be find out by its length minus 1 index value. So suppose python total 6 number of characters are there, so its length is 6. Now how to access the last one, that is n? We just use a method of indexing. Index will be 6 length minus 1, yani ki 6 minus 1 it will become 5. There is backward indexing as well. In backward indexing, the first element can be calculated by the minus sign and the what is the length of the string minus 6, because length is 6, and the last element can be find out or can be accessed by the index value minus 1. So remember students that the forwarding index के अंदर जो आपका index value start होती है that will start from 0 and go up to length minus 1. वाइल इन बैकवर्ड इंडेक्स के अंदर जो आपकी इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है नेगेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो आपको फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कराएगा, और अप टू लास्ट एलिमेंट तक हो जाएगा माइनस 1 तक. तो गॉट द पॉइंट. फॉर एग्जांपल इफ योर स्ट्रिंग हैज अ लेंथ n, देन फॉरवर्डिंग इंडेक्स के अंदर जो आपका इंडेक्स वैल्यू रहेगा वो रहेगा 0 1 2 अप टू n माइनस 1. while इन बैकवर्ड इंडेक्स के अंदर जो आपका रहेगा वैल्यू दैट विल बी माइनस n माइनस n माइनस n minus n minus n minus 2 and up to minus 1. Got the point? So this is the example to access the string in backward or forward indexing. In this, suppose open the program. Again we will write, suppose name n is a variable that represent hello world. Got the point? Now if you want to access the first element, then just use print statement, then name of the string name क्या है आपका n है, use the big bracket and index value 0 means we are going to access the first element. So the first element was h, index value 0 के साथ इसने h को access करवाया. अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 3. इंडेक्स नंबर 3 का मतलब है जो फोर्थ एलिमेंट है आपका 1 h1 e2 l3 और l4. अगेन अगर मुझे सपोज लास्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो दैट कैन बी एक्सेस्ड विद द हेल्प ऑफ, उससे पहले मुझे इसके लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके चलो उसके लिए फंक्शंस हैं, ये वन बाय वन फंक्शन हम डिस्कस करेंगे. अभी मैं बता देता हूँ आपको. n डॉट एल एन जी टी एच एक तो फंक्शन होता है लेंथ, जो आपको एक मिनट, व्हाट इज द डिफर n डॉट एल ई एन something going error here. Okay, I found it is len function that will use to find out the length of the string. In this way we will write len bracket the string value name. So its string is length is 11. Now we want to access the last one element, and that can be accessed with the help of indexing value, and indexing value 11 minus 1 means 10. Okay, so let's check what is the, it is d and last character was d. Now let's use the backward indexing. If we want to print the first element, then we will use the negative of length of the string element. So length is 11, so negative 11 will give you the first character, that is h. In the same sense, if you want to print the last one using negative index value, we will use minus 1. Sorry, something. Okay, print spelling is mistake. Print. Now look here. In this way we will get the d. Now we will learn
slicing of a string. Slicing means breaking up the string into number of parts. Suppose we don't want to access the complete string. Instead of complete, we want to just access some part of the string. For that, we will use the starting point, starting index value, and the last index value. For example, suppose we want to print an it is print use string name. Then suppose we want to print from O to L. यहाँ पे देखो HELLO, उसके बाद O से लेके हमें कहाँ तक प्रिंट करना है, L तक, OWOL. Always remember that space in the string, single space, I'm talking about single space or multiple space may have, all are treated as a character, means that will be counted in the length of the string. Generally multiple space will get converted into the single space only. So here if you want to access the index value, means यहाँ पे O से लेंगे तो index value is 4. So for 2, यहाँ पे देखो हम क्या देते हैं, ये जो 4 है ये it will represent the element 4 in the string, and लास्ट में जब हम 7 लिखते हैं that will represent the सॉरी इसमें क्या बोला मैंने, दैट इज सम, आई थिंक मैंने कुछ गलत बोला इसमें. 4 जो है वो आपका इंडेक्स वैल्यू रहेगा एंड लास्ट वन विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर रहेगा इसमें. सो लेट्स एग्जीक्यूट इट. सो यहाँ पे प्रिंट हुआ आपका O स्पेस W. यहाँ देखो कैसे प्रिंट हुआ ये. फोर्थ इंडेक्स विल रिप्रेजेंट द फिफ्थ एलिमेंट एंड फिफ्थ एलिमेंट इज द O. देन सिक्स्थ एलिमेंट इज स्पेस एंड सेवंथ एलिमेंट इज W. आपको मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ होता है किसी भी स्ट्रिंग का, जैसे मैं दोबारा आकर लिखता हूँ, अगर प्रिंट n 2:9, तो यहाँ पे देखो मैं एक चीज समझा दूं आपको, कमेंट में डाल के बता देता हूँ. जो स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट always refer to index value and end point जो है, लाइक यहाँ पे आपका स्टार्ट पॉइंट है 2. स्टार्ट पॉइंट यहाँ में ब्रैकेट में समझा देता हूँ, इट इज 2 एंड एंड पॉइंट जो है आपका दैट इज 9. विल एंड पॉइंट क्या कहता है, विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द एलिमेंट नंबर और इंडेक्स वैल्यू -1. ठीक है, तो आपका तो या तो आप कैसे कह सकते हो कि जो 9 है दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर 9वां एलिमेंट तक के चलेगा. और दूसरा अगर इंडेक्स की बात करेंगे तो 9 - 1 8th इंडेक्स वैल्यू तक ये एग्जीक्यूट करेगा. लेट्स रन इट एंड फाइंड आउट. सो सेकंड मींस थर्ड एलिमेंट इज द L, फिर आपका 9 तक चलेगा. थर्ड एलिमेंट L है, फोर्थ एलिमेंट L है, फिफ्थ एलिमेंट O है, सिक्स्थ एलिमेंट स्पेस है, सेवंथ W, एट्थ O और नाइन्थ फिर आपका L. सो यहाँ पे देखो LLO space WOL will get print. So this was the slicing of a string. स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग के बाद हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑलरेडी डन, हमने कर लिया कि कैसे लेंथ फाइंड आउट करते हैं. देन हम कुछ बिल्ट इन मेथड्स की बात करेंगे जो स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिप मेथड की. स्ट्रिप मेथड एक्चुअली क्या काम करता है, इट विल रिमूव द व्हाइट स्पेस फ्रॉम द बिगिनिंग और एंड ऑफ द स्ट्रिंग. सपोज नाउ A is a string containing first 3 space, then hello world, then 3 space. ओके कुछ गलत हुआ यहाँ पे, मैं इसको दोबारा करता हूँ क्योंकि मैंने इनिशियल में कमांड में आपको जो स्पेस डाला और वेरिएबल नेम के अंदर इनिशियल में स्पेस अलाउड नहीं होता, स्पेस कहीं भी अलाउड नहीं होता एक्चुअली वेरिएबल नेमिंग के अंदर, इसलिए ये एरर दे दिया इसने. इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा से अगर कोई स्पेस है तो उसको हटा देता हूँ और दोबारा रीअसाइन करता हूँ इसको मैं. यहाँ पे देखो असाइन हो गया, इनिशियल में 3 स्पेस हैं और लास्ट पे 3 स्पेस हैं ए स्ट्रिंग के अंदर. अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, देखो आप कैसे मिलेगा आपको.
इसको मैंने ए को प्रिंट कराया, तो यहाँ देखो इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्पेस है यहाँ पे, और यहाँ पर भी आपका स्पेस दिख रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिप फंक्शन का यूज करता हूँ। जो मैंने फंक्शन पढ़ा है ना अभी, ये स्ट्रिप, ये मेथड क्या काम करता है, टू रिमूव द वाइट स्पेस फ्रॉम द बिगिनिंग और एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो उसको यूज कैसे करना होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। जस्ट हम क्या करेंगे, सपोज प्रिंट स्ट्रिंग नेम इज a डॉट strip। ओके, ऐसे आप इसको यूज करेंगे। अब मैंने इसको यूज किया तो देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला, स्पेस अवेलेबल नहीं है, स्पेस मुझे यहाँ में नहीं मिला, डायरेक्ट मुझे क्या मिला, हेलो वर्ल्ड। जो स्टार्टिंग पे जो ये स्पेस था और जो एंड पे ये स्पेस था, ये गायब हो गया, यानी कि डिलीट हो गया। अगर मैं इसको स्ट्रिंग वैल्यू में प्रिंट करवाना चाहूँ तो देखो क्या आएगा, a डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप यहाँ से आपको क्लियरली आ जाएगा, हटा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ए को बिना स्ट्रिप फंक्शन यूज किए करता हूँ, देखो वापस आपका स्पेस मिल गया यहाँ पे। अब स्ट्रिप के भी दो टाइप होते हैं, लेफ्ट स्ट्रिप एंड राइट स्ट्रिप, यानी कि एल स्ट्रिप एंड आर स्ट्रिप। एल स्ट्रिप क्या काम करता है आपका, लेफ्ट साइड से, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग ये स्पेस रिमूव करेगा। आर स्ट्रिप स्ट्रिंग के लास्ट वाली स्पेस को रिमूव करेगा। देखते हैं कैसे करता है। अब मुझे क्या करना है, बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग जो भी व्हाइट स्पेस है उनको मुझे रिमूव करवाना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, एल स्ट्रिप। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ए डॉट एल स्ट्रिप मेथड को एक्सेस किया, प्रिंट किया। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पे आपका स्पेस गायब हो गया और एंड पे आपका स्पेस अवेलेबल है। अब मैं दूसरा काम करता हूँ, ए डॉट आर स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, इस मेथड को एक्सेस किया मैंने, तो मुझे क्या मिला, इनिशियल पे स्पेस मिल गया और मुझे एंड पे स्पेस गायब हो गया। सो दिस वाज द स्ट्रिप, ऑल अबाउट स्ट्रिप फंक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर मेथड। ये मेथड क्या काम करता है, जो भी आपकी स्ट्रिंग है आइदर इन अपर केस और लोअर केस, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द लोअर केस। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी देखो ए जो था उसके अंदर एच कैपिटल था और डब्ल्यू कैपिटल था। अब मैं क्या करता हूँ, ए डॉट लोअर, ए डॉट लोअर के अंदर सारे लोअर केस के अंदर आ गए, ठीक है। अब एक उसके इसका रिवर्स होता है अपर केस, तो ए डॉट यू डबल पी ई आर, अपर फंक्शन क्या काम करता है, विल कन्वर्ट ऑल द स्मॉल लोअर केस लेटर्स टू द अपर केस लेटर। तो यहाँ से देखो हेलो वर्ल्ड कंप्लीट हो गया, आपका अपर केस के अंदर चला गया। उसके बाद हमारा मेथड है रिप्लेस। रिप्लेस के अंदर क्या करते हैं, रिप्लेस के अंदर हम करते हैं किसी भी एक कैरेक्टर को अगर हमें किसी दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करना है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं रिप्लेस मेथड की हेल्प से। उसके अंदर देखो क्या करते हैं, सपोज प्रिंट ए डॉट रिप्लेस, इसके अंदर हमें मुझे रिप्लेस क्या करना है, रिप्लेस के अंदर मैं देखता हूँ, ओके फंक्शन है ये इनबिल्ट, और इसके अंदर सपोज मुझे ई को डबल ई से कन्वर्ट करना है। सपोज जो ई है अपना, या स्मॉल ई ले लेते हैं, क्योंकि कैपिटल ई तो है नहीं उसके अंदर, नहीं हमने इसको चेंज करके इसको बना दिया। ओके, कैपिटल ई लेते हैं और उसको रिप्लेस कराते हैं डबल ई से, व्हाट द पॉइंट, बट डबल ई से नहीं होगा। आप इसको क्योंकि सिंगल करेक्टर है, आप सिंगल करेक्टर सपोज ए से कराते हैं, इसको मैंने किया। तो यहाँ से देखो, ओके कैपिटल ई नहीं था यहाँ पे, स्मॉल ई से ही एक्सेस कराना पड़ेगा इसको। ओके, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको ई लेता हूँ और इसको एंटर कराता हूँ। तो देखो यहाँ पे जहाँ भी स्मॉल ई था, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था पाइथन के अंदर अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे अगर हमने कैपिटल ई को एक्सेस करवाने के लिए, रिप्लेस करवाने के लिए कोशिश की, लेकिन कैपिटल ई अवेलेबल नहीं है स्ट्रिंग के अंदर, इसलिए रिप्लेस नहीं हुआ। अगर होता तो वो रिप्लेस हो जाता। तो देखो स्मॉल ई था, स्मॉल ई को हमने कैपिटल ए से रिप्लेस करवाया और यहाँ पे कैपिटल ए हमें मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट। स्प्लिट मेथड क्या काम करता है, किसी भी पॉइंट को लेकर अगर आपको लगता है कि स्ट्रिंग को आपको 2 और मोर पार्ट्स में ब्रेकअप करना है, तो और सपोज आपका लॉजिक है कि जहां भी हमें डॉट मिले या कोमा मिले हम स्ट्रिंग को
ब्रेक कर दें, उसके लिए हम स्प्लिट मेथड का यूज करते हैं और वो आर्गुमेंट पास करते हैं जिस आर्गुमेंट के बिहाफ पे हमें उस स्ट्रिंग को ब्रेक करना है। यानी कि अगर पॉइंट जहां मिल जाए तो पॉइंट डालेंगे, कोमा मिल जाए तो कोमा डालेंगे। लाइक यहाँ पे जो हमने डाला हुआ ना, यहाँ देखो, यहाँ जहां भी कोमा डाला है तो जहां भी स्ट्रिंग के अंदर कोमा मिलेगा वो वहीं से ब्रेक हो जाएगी और रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको, ऐसे देखो, हेलो अलग स्ट्रिंग मिलेगा आपको और वर्ल्ड अलग स्ट्रिंग मिलेगा आपको। बोथ आर सेपरेटेड बाय दिस कोमा, क्योंकि अगर सिंगल होता तो ये बीच वाले जो इन्वर्टेड कोमा है ये वाला और ये वाला गायब होता। ओके, तो हम इसको ट्राई करते हैं। अभी हमारे पास जो ए है वो हेलो वर्ल्ड है और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी अमेंडमेंट करवा देता हूँ। यहाँ पे हेलो के बाद मैं लगा देता हूँ सपोज डॉट लगा देता हूँ, एक स्पेस देके, गॉट द पॉइंट। अब मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ, प्रिंट भी करवा लेता हूँ, ए डॉट स्प्लिट। स्प्लिट में क्या किया मैंने कि जहां पर भी मुझे डॉट मिलेगा मेरी स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगी। ओके, यहाँ देखो स्पेस सारा इंक्लूड, ये एक स्ट्रिंग तो आपकी यहाँ तक चली गई, ठीक है। उसके बाद डॉट मिला, डॉट को यहाँ पे डॉट जो था हमारा वो किससे रिप्लेस हो गया, कोमा से और वर्ल्ड, क्योंकि डॉट अब क्या रहा, डॉट जहां भी मिला उसने उसको स्प्लिट कर दिया स्ट्रिंग को। अब ये दो स्ट्रिंग बन गए छोटी छोटी, बट बोथ कैन बी एक्सेस्ड बाय द सिंगल नेम। ओके, उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर, स्ट्रिंग के अंदर मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या काम करते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि द स्ट्रिंग और द सब स्ट्रिंग व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इज अवेलेबल इन द स्ट्रिंग और नॉट। उसके लिए हम इन एंड नॉट इन दो ऑपरेटर यूज करते हैं। इन ऑपरेटर यूज करते हैं उस स्ट्रिंग के अंदर फाइंड आउट उसके अंदर अवेलेबल है उसकी चेकिंग के लिए। नॉट इन का मतलब अगर उसके अंदर नहीं है तो चेकिंग करने के लिए। हम देखते हैं हमारा जो स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, उसके अंदर मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करता हूं प्रिंट ए डॉट, हमारा मेथड क्या था इसके लिए इन और एंड नॉट इन, ठीक है। सपोज इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ बी वेरिएबल, उसके अंदर मैं एक्सेस करवाता हूँ ए डॉट सॉरी ए इन सॉरी नॉट ए इट इज सपोज एच ई इन ए। यहाँ से क्या किया मैंने, देखो अगर एच ई ही इन ए इज ए स्ट्रिंग, अगर एच ई इन एच ई ए के अंदर है तो वो बी के अंदर कॉपी हो जाएगा, यानी कि बी के अंदर सिर्फ एच ई जाएगा। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे बी को तो हमें क्या मिलेगा, एच ई, और वो हमें रिजल्ट क्या दे देगा, ट्रू, कि जो वैल्यू हमने एक्सेस करवाया था। या डायरेक्ट हम प्रिंट कमांड की भी हेल्प से ले सकते हैं। प्रिंट, हम यहाँ से सपोज चाहते हैं डबल एल ओ इन ए, हम इसको डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कराते हैं ट्रू। अगर हम कुछ ऐसी स्ट्रिंग सर्च, जैसे हमें कई बार होता है ना कि आपके पास बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री फाइल है, आपको बोल दिया जाता है कि फाइंड आउट करो कि ये वर्ड इसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं है, या ये सब स्ट्रिंग अवेलेबल है कि नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सर्च करते हैं। और सर्च करने के हम स्मार्ट वे से सर्च करते हैं, ये नहीं कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि हाँ ये वर्ड अवेलेबल है, नहीं, हम स्मार्ट वे से करते हैं। और उसके लिए हमारा मेथड क्या है, उसके लिए हमारा मेथड जो है इन और नॉट इन हमें बताते हैं प्रोग्रामिंग में। तो अगर हमें देखना है कि सपोज एच ओ अगर कहीं अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इसने फॉल्स बता दिया, यानी कि एच ओ स्ट्रिंग के अंदर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अब कुछ और सर्च करते हैं। कुछ और में हमने क्या किया, एच ओ की बजाय हमने ले लिया एल आर डी। क्या एल आर डी इज अवेलेबल है, यस ट्रू, बिकॉज वर्ल्ड के अंदर एल आर डी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसे ही नोट इन के अंदर करते हैं प्रिंट, अगर मैंने लिया एच ई नॉट इन ए। अब नॉट इन क्या काम करता है, वट एवर इन इज डूइंग उसका रिवर्स काम करता है। तो एच ई, अगर एच ई ए के अंदर नहीं है तो ट्रू करेगा। अब ये देखो ट्रू देगा इसका रिजल्ट। इसने ट्रू क्यों दिया, क्योंकि ऑब्वियसली एच ई जो है वो स्ट्रिंग के अंदर ए के अंदर है ही नहीं।
अब आप कहोगे सर स्टार्टिंग में तो है ना HE, लेकिन आप ध्यान दो कि ये दिस इज H स्मॉल हेयर एंड हेयर इज H कैपिटल, तो ये डिफरेंस हो गया। अगर आप इसको कैपिटल H के साथ सर्च करोगे तो ये फॉल्स दे देगा रिजल्ट। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर अवेलेबल है, HE अवेलेबल है, जबकि हम सर्च क्या कर रहे हैं जो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो स्मॉल HE इसके अंदर अवेलेबल नहीं था तो ट्रू दे दिया, कैपिटल HE उसके अंदर अवेलेबल है इसलिए इसने फॉल्स दे दिया, क्योंकि हम नॉट इन ऑपरेटर का काम कर रहे थे। तो ये अबाउट दिस वाज अबाउट द स्ट्रिंग मेंबरशिप ऑपरेटर। उसके बाद स्ट्रिंग कनकनेटेशन। स्ट्रिंग कनकनेटेशन कैसे करते हैं? जैसे हम एडिशन करते हैं ना, सपोज 12 प्लस 15 का ऐड करते हैं तो 27 मिल जाता है हमें। ऐसे ही अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो और दूसरी स्ट्रिंग है स्टूडेंट्स, अगर हमें दोनों स्टूडेंट्स को कंबाइन करना है यानी कि हेलो स्टूडेंट एक स्ट्रिंग बनानी है, तो उसके लिए क्या करते हैं a प्लस बी। तो a प्लस बी से क्या हो गया, हेलो स्टूडेंट्स इकट्ठा आ गया। तो यहाँ पे जो प्लस है वो आपका कंकनेटेशन का काम करता है, और कंकनेटेशन का मतलब होता है ज्वाइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग्स टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल वन। अगर हम इसको थर्ड वन के अंदर भी असाइन करवा सकते थे, लाइक दिस c इक्वल टू a प्लस बी। अगर हम c को प्रिंट करेंगे तो अब उसके अंदर हेलो स्टूडेंट आ गया। अब यहाँ पे देखो, जैसी स्ट्रिंग आपकी ओरिजिनल थी वो एज इट इज उसके अंदर ज्वाइन अप हो जाती हैं, उसमें कोई अबेंडमेंट कोई स्पेस नहीं आता है। अगर आपको स्पेस देना है तो इंडिविजुअली आपको उसके अंदर स्पेस ऐड करना पड़ेगा। स्ट्रिंग रेप्लिकेटर। स्ट्रिंग रेप्लिकेटर आपका कब काम करता है, जब आपका एक ऑपरेंड आपका नंबर होता है और दूसरा ऑपरेंड आपका स्ट्रिंग होता है, और प्लस इसमें स्टार ऑपरेटर हम यूज करते हैं स्ट्रिंग रेप्लिकेटर के लिए। ये क्या काम करता है, 3 स्टार हेलो विल प्रिंट द हेलो 3 टाइम्स। इसको अल्टरनेटिवली कैसे लिख सकते हैं, हेलो स्टार 3। ये दोनों एक ही तरीके हैं किसी भी स्ट्रिंग को रिपीट करवाने के लिए। ये नंबर वो है जितनी बार आप उस स्ट्रिंग को रिपीट करवाते हो। लेकिन अगर ये दोनों ही आप नंबर लेते हो, स्टार बीच में लगाते हो, तो वो मल्टीप्लीकेशन करेगा, वो रेप्लिकेशन नहीं करेगा। लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो 12 स्टार 4 क्या देगा आपको, 48 दिया। अब हम क्या करते हैं, 4 स्टार हेलो। अब इसने क्या किया, हेलो 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 4 टाइम इसने रिपीट किया। ऐसे ही अगर मैं पहले हेलो लिखता हूँ और उसके बाद मैं इसको मल्टीप्लीकेशन कराता हूँ, रिपीट यानी कि रेप्लिकेट करवाता हूँ 4 टाइम, तो भी ये सेम रिजल्ट देगा, क्योंकि आपका जो रेप्लिकेशन के लिए ऑपरेटर यूज जो है वो वन शुड बी नंबर एंड अनदर शुड बी स्ट्रिंग। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एस्केप कैरेक्टर। एक्चुअली एस्केप कैरेक्टर क्या होते हैं, जो कैरेक्टर हम इलीगली वे से, जो इलीगल होते हैं, जो हम प्रोग्रामिंग में दिखा नहीं सकते हैं, उनको दिखाने के लिए हम एस्केप कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। लाइक डबल कोटा साइन जो होता है वो आपका इलीगल होता है, जो आप प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली नहीं दिखा सकते। बट विद द हेल्प ऑफ बैकस्पेस ऑपरेटर यानी कि एस्केप कैरेक्टर बोलते हैं इसको, आप उसको इसकी हेल्प से डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो चीज दिखा सकते हो। अभी देखो हमने कितने भी प्रिंट स्ट्रिंग को प्रिंट किया, कहीं भी डबल कोटा नहीं मिला। अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं लाइक यू आर मोहन। ओके, हमने क्या किया, यू आर मोहन। इसमें चलो एक और ऐड करवा देते हैं, यू आर मोहन्स ब्रदर, यू आर मोहन्स ब्रदर। ठीक है, अब हम क्या करना है, मोहन जो लिखा हमने उसको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्टोर करवाना है। सिंपली अगर प्रिंट करेंगे तो देखो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मोहन नहीं आया, लेकिन हमें ये प्रिंट करवाना है बिकॉज डायरेक्टली ये इलीगल है। अब हम इसको लीगल बनाना है, कैसे बनाते हैं, प्रिंट यू आर मोहन को मैं ब्रदर को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है, यहाँ से मैंने, अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए बैकस्पेस लगाते हैं और डबल एंड कोमा लगाते हैं, और जहाँ पे एंड करना है वहाँ भी बैकस्पेस लगाते हैं और डबल एंड कोमा ऐड करते हैं, और लास्ट पे आपका है ही। अब इसको प्रिंट करते हैं, तो देखो मोहन को डबल एंड कोमा में कवर कर लिया इसने।
तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी अपने पास एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, वो कुछ फॉर्मेटिंग टाइप में अगर आपको आउटपुट लेनी है तो इसके यूज करते हैं। हमारे पास बहुत से एस्केप कैरेक्टर्स हैं, लाइक बैकस्पेस कोटा, सिंगल कोटा को दिखाने के लिए। अगर हम यहाँ पे देखो डबल बैकस्पेस से सिंपल बैकस्पेस दिखाने के लिए, अगर हम सिंपल यहाँ अगर सिंगल बैकस्पेस डालते हैं, मान लो हमने डाला, इसी को एक्सेस कराता हूँ मैं, और मैं सपोज यहाँ पे बैकस्पेस डाल दिया मैंने, ठीक है, तो इसने एरर दे दिया क्योंकि ये बैकस्पेस है यहाँ पे अलाउड नहीं है। अब चलो मैं इसको कहीं बीच में डाल के देखता हूँ, क्या पता ये काम करे, लेकिन ये नहीं करेगा। ओके, मैंने बीच में बैकस्पेस डाल दिया। अब ये देखो इसने बैकस्पेस के साथ डबल बैकस्पेस इसने प्रिंट कर दिया। अब बैकस्पेस जो है वो आपका क्या था, यहाँ पे देखो बैकस्पेस हमने बताया कि जो बैकस्लेस अगर आप डालोगे तो उसका कोड आप डबल बैकस्लेस डालोगे तो सिंगल मिलेगा आपको। ऐसे ही अगर आपको बैकस्पेस n डालोगे तो आपका आउटपुट न्यू लाइन के अंदर आएगा। कैसे आएगा, देखो आपका यही मैं एक्सेस करा देता हूँ a, और यहाँ पे मैं n लिख देता हूँ, यानी कि इसके बाद जो भी स्ट्रिंग आप लिखोगे वो आपकी नई लाइन के अंदर प्रिंट मिलेगी। ये देखो, सॉरी इसने तो एज इट इज दिखा दिया। ओके, इसमें हम देखते हैं कुछ चेंज रह गया हमारा शायद, दिस वन एंड दिस वन, नहीं इसमें प्रिंट स्टेटमेंट में लेते हैं इसको। प्रिंट स्टेटमेंट में हमने क्या करना है, यू आर बैकस्पेस एन मोहन, यहाँ से देखो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये हम एस्केप कैरेक्टर लगाते हैं क्योंकि वो वहां पे देखो काम नहीं किया, एरर दे दिया ना, तो इसका मतलब है ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर काम करते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यू आर बैकस्लेस एन और मोहन, एक्चुअली जनरली होता क्या है कि वट एवर यू विल राइट इन द डबल इनवर्टेड कोमा इन द प्रिंट स्टेटमेंट विल गेट प्रिंट एज इट इज, बट हमने तो डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर बैकस्लेस एन भी डाला था जो प्रिंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, ये एस्केप कैरेक्टर है जो आपको इसके बाद की एंट्रीज को न्यू लाइन के अंदर प्रिंट करेगा, जैसा कि हमने यहाँ सीखा है। उसके बाद बैकस्लेस आर, ये कैरियज रिटर्न का काम करता है, यानी कि आपकी स्ट्रिंग की लाइन के बिगिनिंग पे चला जाता है। उसके बाद टैब, ये एक टैब का स्पेस छोड़ देगा। जैसे कैसे करते हैं, सपोज यही आपका स्ट्रिंग था प्रिंट हेलो स्टूडेंट, अब डी के बाद में क्या करता हूँ, बैकस्लेस टैब लगाता हूँ और स्टूडेंट लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखता हूँ मुझे क्या मिलता है, सॉरी इसने एरर दिया, प्रिंट को मैं दोबारा एग्जीक्यूट कराता। ओके, एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने ब्रैकेट यहाँ पे ओपन नहीं किया था इसलिए इसने एरर दिया। ओके देखो यहाँ पे डी के बाद टी लगाया मैंने, टी मीन्स टैब, और टैब का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट 8 बिट स्पेस, ये 8 पिक्सल का स्पेस छोड़ेगा। आपको पता है ना कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो डिवाइडेड इनटू पिक्सल होती है, पिक्सल मीन्स द स्मॉलेस्ट विजिबल यूनिट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो बाय डिफॉल्ट ये 8 पिक्सल स्पेस आपको छोड़ देगा बीच में, और नेक्स्ट आपकी वैल्यू प्रिंट करेगा। उसके बाद बैकस्पेस अगर करना है तो आपको स्लैश बी लगाते हैं। फॉर्म फीड क्या काम करता है, आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है। ट्रिपल ओ ऑक्टल वैल्यू प्रिंट करेगा और हैश एक्स एच एच हेक्सा वैल्यू। उसके बाद कुछ स्ट्रिंग मेथड्स हैं। कैपिटलाइज क्या काम करता है, एवरी फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में बना देगा। सॉरी, कैसे, मान लो आपका स्ट्रिंग था ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और ए को मैंने प्रिंट किया एज इट इज आ गया। अब मुझे क्या करना है, ए डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट कैरेक्टर था एच, वो अपने आप कैपिटल हो गया। कैपिटलाइज का काम होता है टू मेक द कैपिटल ऑफ वेरी फर्स्ट कैरेक्टर। उसके बाद केस फोल्ड एक फंक्शन होता है, क्या काम करता है, कन्वर्ट्स स्ट्रिंग्स इनटू लोअर केस। तो अगर आपको एक लोअर फंक्शन भी था और एक केस फोल्ड भी था, यानी कि केस को फोल्ड करना यानी कि छोटा करना उसको। सेंटर, ये स्ट्रिंग को
सेंटर्ड स्ट्रिंग में रिटर्न कर देगा। काउंट अगर हम किस लिए यूज करते हैं कि अगर किसी एक कैरेक्टर को या स्पेसिफिक स्ट्रिंग को हमें चेक करना है कि वो कितनी बार उसके अंदर आया है, तो उसके लिए सपोज मुझे हेलो वर्ल्ड जो लिखा है मुझे चेक करना है व्हाट इज द रिपीटेशन ऑफ एल इन दिस स्ट्रिंग, तो उसके लिए क्या काम करते हैं ए डॉट काउंट और उसके अंदर आर्गुमेंट में क्या का पास करवाता हूँ जिसको मुझे सर्च करना है, तो ये क्या बता देगा 3, यानी कि एल जो है हेलो वर्ल्ड के अंदर 3 बार आया है, इसलिए काउंट फंक्शन आपको बताएगा रिपीटेशन ऑफ एनी स्ट्रिंग और कैरेक्टर इन द, उसके बाद एनकोड रिटर्न्स द एनकोडेड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। एनकोडेड और डिकोडिंग दो इसके होते हैं, एनकोडिंग में इसका कैरेक्टर भी वैल्यू भी आती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हमें चेक करना है कि स्ट्रिंग किस स्पेसिफिक कैरेक्टर से एंड हो रही है कि नहीं हो रही है, जैसे अगर हमें फाइंड आउट करना है कि एक पैराग्राफ लिख दिया तो और ये मैसेज बता दिया कि जहां भी डॉट मिले आपको उसको मतलब आप समझ लेना कि लाइन कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करेंगे एंड्स विद आप डॉट से स्टार्ट कर देंगे। एक्सपैंड टैब्स, सेट द टैब साइज। एक्सपैंड टैब बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बताया था, टैब का जो साइज होता है 8 पिक्सल होता है, अगर आपको उससे बड़ा करना है ज्यादा स्पेस देना है तो एक्सपैंड टैब आप मेथड का यूज कर सकते हो। ऐसे ही फाइंड मेथड भी आपको क्या काम करता है किसी भी सब स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए। इंडेक्स वैल्यू अगर हमें चेक करना है कि ओके ये इंपॉर्टेंट है इंडेक्स वैल्यू, कई बार क्या होता है हमें किसी कैरेक्टर्स की वैल्यू पता होती है लेकिन उसका इंडेक्स पता नहीं होता, इंडेक्स पता होने के बाद तो हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि ए इंडेक्स वैल्यू 2 तो अपने आप बता देगा कि एल है, लेकिन अगर हमें पता करना है कि एल की एल जो है उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, उसके लिए मेथड यूज करते हैं ए डॉट इंडेक्स और एल। अब पॉइंट ये है क्योंकि एल आपका 3 बार आया है तो कौन सा इंडेक्स देगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी एल पहले इसको मिलेगा स्ट्रिंग में फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू से लेके 0 से लेके आपको जो जो ट्रेवल करेगा स्ट्रिंग के अंदर जहां भी इसको फर्स्ट एल मिलेगा ये वो इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। सॉरी ओके ब्रैकेट गलत लगा दिया मैंने, यहाँ पे आपका ये लगेगा क्लोज ब्रैकेट, यहाँ से देखो इसने इंडेक्स वैल्यू 2 दे दिया। अब देखो कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, हमें w का इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे ए डॉट इंडेक्स ऑफ w, इसने इंडेक्स वैल्यू 6 दे दिया। तो इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपको बताता है कि किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू क्या है स्ट्रिंग के अंदर। अब इज एलनम, इज एलनम फंक्शन क्या काम करता है, ये रिटर्न करेगा अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू को, अगर उस स्ट्रिंग के अंदर अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर है तो ट्रू कर देगा अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इज अल्फा अगर उस स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर हैं तो ये ट्रू करेगा नहीं तो फॉल्स कर देगा। इज डेसिमल ये डेसिमल वैल्यू को है तो ट्रू कर देगा नहीं तो फॉल्स करेगा। इज डिजिट कोई भी डिजिट वैल्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू को अगर है तो आपको ट्रू दे देगा। इज लोअर इज न्यूमेरिक इज प्रिंटेबल, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, इज लोअर का मतलब ये चेक करेगा क्या स्ट्रिंग इज लोअर में है कि नहीं है, यानी कि लोअर केस में है कि नहीं है, तो ए डॉट इज लोअर। कुछ फंक्शन मैंने प्रैक्टिकल नहीं बताया वो आप खुद चेक कर लेना क्योंकि वैसे भी क्लास काफी लंबी चल चुकी है अभी। ए डॉट इज लोअर ये ट्रू दे दिया क्योंकि ए के अंदर क्या था हमारा, देखो यहाँ पे ए वाज हेलो वर्ल्ड। अब ए डॉट इज अपर यानी कि अपर केस के लिए मैं चेक करता हूँ तो फॉल्स दे दिया क्योंकि अपर केस में स्ट्रिंग आपकी नहीं है। उसके बाद हमारा है इज स्पेस यानी कि उसके अंदर कहीं स्पेस प्रिंटेबल यानी कि क्यों प्रिंटेबल है तो ट्रू कर देगा नहीं तो नहीं। स्पेस है तो वाइट कितने स्पेस हैं वो वाइट स्पेस है तो नहीं है वो इज स्पेस मेथड यूज करेगा। इज टाइटल क्या काम करता है, एवरी वर्ड के कैरेक्टर को कैपिटल बना देता है और ये चेक करता है जो टाइटल फंक्शन होता है ना वो कैपिटल बना देता है, जैसे हेलो वर्ल्ड तो हेलो का एच बड़ा बना देगा वर्ल्ड का डब्ल्यू बड़ा बना देगा। और अगर आपकी कोई स्ट्रिंग टाइटल मोड में है यानी कि टाइटल फंक्शन के साथ टाइड है तो इज टाइटल लगाते हैं कि आपको चेक करना है कि यहाँ पे हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है कि नहीं, उसके लिए इज टाइटल यूज करते हैं। इज अपर लोअर लोअर में कन्वर्ट कर देगा। एल स्ट्रिप मैंने ऑलरेडी बता दिया, वहां पे एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप दो थे जो राइट साइड और लेफ्ट साइड से उसको स्पेस को हटाते थे। रिप्लेस मैंने बता दिया। पार्टीशन पार्टीशन में मैंने बता दिया कि स्ट्रिंग को ब्रेकअप करना है। आर फाइंड आपको राइट हैंड साइड से फाइंड आउट करने के लिए देगा
और आर इंडेक्स वैल्यू उसकी, सर्च द स्ट्रिंग फॉर ए स्पेसिफिक वैल्यू एंड रिटर्न द लास्ट पोजीशन वेयर द इंडेक्स फाउंड, वेयर द इंडेक्स फाउंड। मैंने बता दिया। स्वैप मैंने बता दिया। स्वैप का मतलब है अपर केस जो है उसको लोअर केस बना देगा और लोअर केस को अपर केस में। देखो ये इंटरेस्टिंग है, इसको चेक कर लेते हैं प्रैक्टिकली। ये मेथड क्या था हमारा, स्वैप केस। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ए जो है सपोज अपना है HELLOWORLD। ये देखो मैंने कॉम्बिनेशन यूज किया है तो आपका ये है। अब मैं क्या करता हूँ, ए डॉट स्वैप केस। अब क्या हो गया, जो कैपिटल में था वो स्मॉल में हो जाएगा, जो स्मॉल में था वो कैपिटल में हो गया। ये स्वैप केस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई बार हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमारा था टाइटल। मैंने बता दिया कि इट विल कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस। अपर, ये आपको अपर करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रिंग in the Python. In next video we will learn about the tuples and list. So thank you very much, and do practice of all the functions methods what we have included today in this video. Thank you very much.